Namaste children, I welcome you all in my English class. Today, before going to our topic, I just want to discuss with you about our syllabus. English reader, English practice, English writing. These three sections are there in our syllabus, according to which we have to study. हम अप्रैल मंथ जो कि पास ऑन हो चुका उसमें देखते हैं क्या क्या करना था हमें. आई स्पीक, आई से, आई टॉक पोएम जो हमने कर लिया है. डॉल्फिन्स, डॉग, वी हैड डन दिस ऑल्सो. बट इन इंग्लिश प्रैक्टिस बुक till now we had done naming words only. What we have to do? Replacing words. We have to complete our replacing words in further classes. Today we will start our writing section, in which we have to learn about these two topics, visit to a zoo, and the next one is application for sick leave. So here we are going to learn visit to a zoo. How to write about visit to a zoo. When we talk about zoo, most children who love animals are always excited and very curious looking at pictures. You love animals, but seeing a real animal is really most exciting. Going to a zoo, looking at different shapes of animal, their color, how they behave, how they react in front of us, how they react with their own class, like how they react with the other animals, how they react with their own little ones, how they react with us when we go in front of them, what they eat, how they really look like. It is really nice to admire them. Some children get fascinated looking at them. The furious animals are kept in a nice hard enclosure so they don't harm the visitors. Sometimes some zoo write the precautions or the warning that don't feed animals. Wild animals are kept in a large spacious enclosure. So, whatever animal you want to see, you can see that all animals in a single place, that is a zoo. So, what we are going to do today? We are going to write about our experience looking all the lovely animals and birds that we saw. In this lockdown period, we are not able to go anywhere. So, today after reading our poem Visit to a Zoo, what we are going to do? We just want to, last time we read or learn the poem at the zoo. Today we are going to share our experience when I visited to a zoo, what things I experienced at that time I want to share with you. And today you have to learn how to share and those experience in writing. कैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस को राइटिंग स्किल से लिख सकते हो. टुडे आज आप वही सीखेंगे जो हमने पहले सीखा, जो हमने पहले घूम लिया, जो विजिट घूम चुके हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने विजिट टू अ जू को. हेयर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट संडे. आई एम जस्ट इमेजिन, ओके, मैंने बहुत पहले किया, अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में नहीं गई हूँ कहीं. अपने पहले के एक्सपीरियंस को ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको लिखने का एक तरीका बता रही हूँ. आप रिसेंटली गए, आप ऐसा इमेजिन करो कि आप रिसेंटली गए हो. मैं जब भी रिकॉल करती हूँ मुझे लगता है मैं आज ही गई हूँ. लास्ट संडे आई वेंट टू द जू अलॉन्ग विथ माई फैमिली. जनरली संडे को क्या होती है, हमारे पेरेंट्स की भी छुट्टियाँ होती हैं अगर वो वर्किंग हैं, और हमारी भी स्कूल्स की छुट्टी होती है. तो हम प्लानिंग
जो भी करते हैं उसके अपने छुट्टियों के अकॉर्डिंग करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू द ज़ू अलॉन्ग विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ कहाँ गई? ज़ू। क्योंकि हम लोग अभी छोटे हैं, हम अकेले नहीं जा सकते, तो हम किसके साथ जाते हैं? फैमिली मेम्बर्स के साथ। ज़ू इज़ अ वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड मेड आर्टिफिशियली बाय मैन। ज़ू एक ऐसा संसार होता है जहाँ की क्या होते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए प्लेस बनाया होता है, उनकी केयर टेकिंग की जाती है, जो कि किसने बनाया होता है? मैन ने। जो नेचर से हमें मिलता है उसे हम नेचुरल बोलते हैं, और जो मैन मेड होता है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स आर केप्ट एंड टेकन केयर ऑफ। ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ हम क्या देखते हैं? डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को, वाटर एनिमल, लैंड एनिमल, बर्ड्स, डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स आप देख सकते हो, ऑन पॉन्ड्स देख सकते हो, इन केज देख सकते हो, और उनकी क्या की जाती है? अच्छे तरह से देखभाल की जाती है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आप ज़ू के बारे में जानते हो तभी तो आप क्या होते हो? खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो जब भी आपको ज़ू जाने के लिए कहा जाता है। सो हेयर वी राइट हेयर डिस्क्रिप्शन अबाउट ज़ू, हम कब गए थे और ज़ू में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। एज सून वी रीच द एंट्रेंस ऑफ द ज़ू, जैसे ही हम पहुँचे थे ज़ू के गेट पे, इंट्रेंस पे, जहाँ से हम अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। माई फादर बॉट टिकट फॉर अस, मेरे पिताजी ने क्या किया? टिकट हम लोगों के लिए लाया था। एंड वी ऑल वॉक्ड इनटू द ज़ू, और हम लोग कहाँ चले गए? ज़ू के अंदर गए। अब देखो, मैंने जो भी ये मेरा बीता हुआ एक्सपीरियंस है, सो आई राइट इट इन पास्ट टेंस। अगेन देखो, मैंने वी रीच का रीच्ड यूज़ किया है, ठीक है। ये मैं ना बीते हुए सारा चीज़ हो चुका है पास्ट में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ। फर्स्ट, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स वर द फर्स्ट टू वेलकम अस। जैसे ही हम ज़ू में एंट्री लिए, फर्स्ट जो हमें सेक्शन दिखा वो बर्ड्स का था, जिसमें वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कलरफुल भी थे, वैरायटी ऑफ दैट मीन्स कि जैसे वल्चर, आउल, स्पैरो, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल बर्ड्स, पिजन, हैन, सारे तरह के पक्षी हमें देखने को मिले, और ऐसा लगा कि वो हमारा क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। दे ऑल वेलकम अस। When we went ahead, जैसे ही हम आगे गए, we saw a lion, क्या देखा मैंने? Lion, a white tiger, hippopotamus, deer, giraffe, monkey, hyenas या hyena, etc. one after another. अभी तक जिस जानवरों को पिक्चर्स में ही देखा था हमने, आज मैंने उन्हें सामने से देखा कि वो रियली में कैसे दिखते हैं। कैसा लगता है जब वो अपने आइज़ को ब्लिंक करते हैं, कैसा लगता है जब वो मूव करते हैं अपने पैरों पे, कैसा लगता है जब वो रॉर करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? डियर को देख रहे हैं, जिराफ को देख रहे हैं। ये रियली में हमने ये जाना था कि जिराफ जो होता है काफ़ी लंबा होता है, टॉल होता है, पर जब हम ज़ू गए तो हमने ये सामने से देखा कि रियली में वो कितने लंबे होते हैं। मंकी आप कभी कभी देख लेते हो, लेकिन ज़ू में आपको इसकी भी वैरायटी देखने को मिल जाती है। हिप्पोपोटामस देखने मिल जाता है। वन बाय वन क्या किया मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मैं वन बाय वन जैसे आगे गई, बढ़ रही थी, मुझे एक के बाद एक दूसरे जानवर दिख रहे थे। ज़ेब्रा, मैंने ईटीसी यहाँ लिखा है, ज़ेब्रा रहता है। बहुत सारे एनिमल्स, एलिफेंट आर ऑल्सो देयर, बेयर आर ऑल्सो देयर, फिश आर ऑल्सो देयर, टर्टोइज आर ऑल्सो देयर। ओके, तो हम क्या करते हैं, बस कुछ चीज़ों के बारे में लिख के हमने क्या लिखा है, एटसेट्रा। बहुत सारे, अगर हम सिर्फ एनिमल्स का नाम लिखें तो हमारा एक पूरा पेज एनिमल्स के नाम से ही
आराम से फिल हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, एज अ शॉर्ट लिखना है हमने जो एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने वहाँ पे जो जो देखी उसमें से कुछ जानवरों के नाम यहाँ लिख दिया। वाइल वॉकिंग अराउंड द ज़ू, जब मैं ज़ू के चारों तरफ घूम रही थी, आई सॉ बोर्ड्स विच वॉन्डर्स, मैंने डिफरेंट बोर्ड्स देखा जिस पे कि वार्निंग लिखी हुई थी। कैसी वार्निंग? नॉट टू फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को कुछ भी नहीं खिलाने के लिए। क्यों? दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कि वो हमें हार्म कर सकते हैं, आप कुछ खिलाओगे, ऑफ़र करोगे, हो सकता है वो आपका हैंड पकड़ दे, फिंगर कट कर दे। दूसरा, क्या उनके लिए सही है ये हम नहीं जानते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग खाना वहाँ के ज़ू वाले ही मेंबर्स देते हैं। तो हो सकता है हमारा खाना जो हम उन्हें फीड करा रहे हैं वो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट टीज देम। और क्या लिखा मिलता है? जानवरों के साथ ज़्यादा आपको क्लोज नहीं होना है, उनको टीज़ नहीं करना है। और क्या करना है, उनके इनक्लोज़र के पास जो चारों तरफ से उनको घेर के रखा है उनके पास नहीं जाना है। अब हर किसी को एक जैसे इनक्लोज़र में नहीं क्लोज किया जाता है। लायन, टाइगर, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या किया जाता है, इनक्लोज़र उनके चारों तरफ बनाया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। कीप द एरिया क्लीन एंड हेल्दी एट्सेट्रा। एरिया को कैसा करना है? क्लीन। आप अपने एरिया, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है एरिया को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कि हमें एरिया को कैसा रखना है, क्लीन रखना है। ऐसा हमें वार्निंग बोर्ड पे दिखता है। रैपर्स को इधर उधर नहीं फेंकना है। ओके, हम वहाँ घूमने जाते हैं, घूमने के प्लेस को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा। इसी तरह के और भी वहाँ पे लिखे हुए आपको वार्निंग दिखेंगे। वो मैंने क्या किया, आई स्ट्रिक्टली फॉलोड दोज इंस्ट्रक्शंस, मैंने स्ट्रिक्टली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। रिटन ऑन बोर्ड, जो कि बोर्ड पे लिखे गए थे। इट विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन माई मेमोरी, वो मेरी मेमोरी में हमेशा क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आज ही। जैसे जैसे मैं रिकॉल कर रही हूँ मुझे लग रहा है जैसे मैं आज ही विज़िट कर रही हूँ। आज ही मैंने जस्ट कल में ही मैंने क्या करके आया है, जू को विज़िट करके आया है। तो आप जब फैमिलियर होते हो इतने पास से एनिमल्स के, तो आपको आपका एक्सपीरियंस भी जेन्युइन हो जाता है। अभी तक जिनको आप पिक्चर्स में देख रहे होते हो, अब रियल में आपको उनको देखने सुनने के बाद आप क्या करते हो, बताते हो, अरे रियल में ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, पिक्चर में ये जो दिख रहा है इससे डिफरेंट होता है, इसका ये चीज़ करते हैं हम शेयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विजिट टू अ ज़ू लिखना सीखा। अगेन एक बार हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिकॉल कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एंड। स्टार्ट करते हैं हम जब गए हैं तब से, एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद हमने वहाँ जो देखा आपके क्लास 3 में, दैट इज़ इनफ टू यू। आपको यही चीज़ें लिखनी सीखनी है। लास्ट संडे I went to the zoo along with my family. Zoo is a world of wild animals and birds made artificially by man. It is a place where different kinds of animals, birds, water animals are kept and taken care of. As soon we reached the entrance of the zoo, my father bought ticket for us and we all walked into the zoo. Birds of different kinds and colors were the first to welcome us. When we went ahead, we saw a lion, a white tiger, hippopotamus, deer, giraffe, monkey, hyenas, etc., one after another. While walking around the zoo, I saw boards which warned us not to feed the animals. Please do not tease them. Keep the area clean and healthy.
It's extra. I strictly followed those instructions written on board. It will always remain fresh in my memory. Now, what you have to do? You have to write this in your copy and learn it also for your upcoming examinations. Till thank you children. In next class we will do our next topic.